ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨੇਮਰ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਲੋਕ, ਕੁਛ ਛੰਦ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਗੱਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਝਾਂਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੋ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਸਰਬਦੇਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਠੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰੱਬ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਈ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ, ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ। ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਵੇਦ ਨਿਕਲੇ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਸਾਲ ਹੋਏ। ਲੁਕਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲਬਨ 90,000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ 4000 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੜਦੀ ਛਾਲ ਨਾਲ ਤਨ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੇਦ ਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖੇ ਕਿਸ ਨੇ? ਲਿਖੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਵੇਦ। ਲਿਖੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ
ब्यास ये ऋषि ब्यास के नां ते, उसे ऋषि के नां ते, उसे ने इस दरिया के तट ते बैठ के वेद लिखे। व्यास जी इसका नाम से, वेदां की लिखत तो बाद आप दा नाम पै गया ऋषि वेद व्यास। उंज वेद का मतलब है ज्ञान, ते विद्वान का मतलब है ज्ञान नू जानन वाला। विद्वान शब्द भी वेदां तो ही आया। वेद ज्ञान, वैदवान यानी पूरा कह दो वैदवान, वेदां नू जान वाला। लफ्ज है वैद, जिसनों असी दवाइयां देने वाले नू पर्शियन दे हकीम कह देंदे हैं, डॉक्टर कह देंदे ने। पुराना नाम संस्कृत दे है वैद। वैद पंजाबी रूप वेद बन गया। वैद बई ये वैद है। वैद ज्ञान रखन वाला। ते वैद दवाई ते बीमारी इकट्ठी क्यों जुड़ गई? आलमां दा ख्याल है ज्ञान दुख दा ही आउंदा है, सुख दा नहीं। हुण एक निक्का जिहा उदाहरण दें। कदी अख दुखनी आ जाए ना, अख ते सारा ध्यान फिर अख दे आले दुआले ही आउंदा है। फिर उस दिन बंदे नूं सारा दिन ज्ञान रहिंदा है अपनी अख दा। अख दुखदी है, ध्यान अख से जाता है। जिथे ध्यान जाएगा, ध्यान मजबूर कर देगा ज्ञान प्राप्ति लई, मजबूर करेगा। दुनिया दे जेड़ा जेड़ा भी ज्ञान विकसित होया दुख तो होया। इन्नी मैं अर्ज करा, जे दंद ही ना दुखदे ते दंदां दीयां दवाइयां आलमे वजूद विच नहीं आनियां सन, दंद ठीक करन दी। ध्यान जांदा है दुख ते, अगे पिछे बंदे नूं पता नहीं कि मूँह दे कितने क दंद ने, पर जिस दिन कदी दाड़ दुखे, दंद दुखे, सारा ध्यान ही दंद दे च आउंदा है, और ते किधरे जांदा ही नहीं। वैद वेदना, वेदना दे अखरी अर्थ ने पीड़ा, दुख। संस्कृत दे दुख तकलीफ पीड़ा नूं कहंदे ने वेदना। ते जिहड़ा उस पीड़ा नूं जानने वाला है वो है वैद, वो है वैद। वेदना शब्द बड़ा कीमती शब्द है बई। दुख दा ज्ञान, पीड़ा दा ज्ञान, ज्ञान होंदा ही पीड़ा दा है। फिर भी तुसी कदी बगौर मुताला कर लेना, जो ज्ञान है वो दुख दा है बंदे कोल, पीड़ा दा है। किसी थां पीड़ा शुरू है, ये पीड़ा समाजिक तौर पर होवे, राजनीतिक तौर पर होवे, आर्थिक तौर पर होवे, शरीरक तौर पर होवे, मानसिक तौर पर होवे, बार बार ध्यान उत्थे जांदा है। ते जिथे ध्यान जाएगा उत्थे बंदा समाधान लभदा है, ते समाधान ही ज्ञान है। जिथे रोग होवे फिर बंदा दवाई लभदा है, क्योंकि रोग पीड़ा बंदे दे ध्यान नूं खिंचदी है, अपने तरफ खिंचदी है। मन विच पीड़ा सी क्यों है, दुख है क्यों है, भुख है क्यों है, बार बार ध्यान गया तो ध्यान ने समाधान लभण दे उत्ते मजबूर कर दिता। इन्नी मैं अर्ज करदे हां। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं दुख नूं किधरे रब दी करोपी नहीं समझना चाहिए। केतियां दुख भूख सद मार ए भेदात तेरी दातार। इते संभलना है मनुख ने। इत्थों तो ज्ञान की झलक जद कभी जिंदगी बहुती अयाशी ते मकारी विच बतीत हो जाए, दिमाग बिल्कुल कुबड़ रह जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं, पत्थर रह जाते हैं मनुख, कुछ भी नहीं आता उन्हां कोल। इंज कह लो कई दफा दुखा ते पीड़ा दे गहरे सागर दे तल विचों ज्ञान दे सुच्चे मोती निकलते हैं, इंज कह लो। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, जदों ये वेद उचारण किए गए ते जदों लिखे गए, पंजाब दे उचारण होए, उत्तराखंड दे लिखे गए, पंजाब दे उचारण करन दे ते लिखण दे गालबन जो है 3000 साल का वक्फा है। ये थोड़ा वक्फा नहीं है, बहुत बड़ा वक्फा।
जदों ब्रह्मे ने उचारण कीते, जदों व्यास ने लिखे 3000 साल। ते मैं इन्नी अर्ज करा 3 दिन का भी वक्फा होवे ना, 3 दिन का गल दे फर्क पै जांदा। वेदां नूं कहंदे ने श्रुति, सुनिया होया ज्ञान, जो सुन के संग्रह किया है, जो सुन के इकट्ठा किया है, इहदा नाम है श्रुति। क्योंकि लिखण की शैली तो है नहीं सी, लिखण का सिलसिला तो है नहीं सी। तो ब्रह्मा ने जो कुछ ऋषि मुनियां नूं सुनाया, उन्होंने कंठ कर लिया, उन्होंने अपने जहन दे च वसा लिया। पीढ़ी दर पीढ़ी गल ये चलती रही, लिपि का जन्म होया, लिखण शैली का जन्म होया। तो आखिर ऋषि वेद व्यास ने सारियां कोलों श्लोक इकट्ठे करके, जिस जिस ऋषि मुनि नूं जिस ढंग नाल याद सन, वेदां नूं तरतीब दिते। इस वास्ते सियाणे जो साहित्य नूं पढ़न वाले ने, वो कहंदे ने वेदां दी विचार तरतीब अनुसार नहीं है। एक श्लोक किधरों मिल गया, एक छंद किधरों मिल गया, श्रुति सुनिया होया ज्ञान। जदों उचारण होए ते जदों लिखे गए ते 3000 साल का वक्फा है, ते थोड़ी गल नहीं। मेरे कोल एक गुलाब का फुल होवे, मैं किसी दूसरे नूं दे देवां, दूसरा तीसरे नूं देवे, तीसरा चौथे नूं देवे, चौथा पंजवें नूं देवे, ते 100 हत्थां दे चों हो के जद ये गुलाब का फुल मेरे कोल आएगा, ये ओ नहीं होवेगा। ये चों हर बंदे ने अपनी कुछ छो दे दी है, ते विचों कुछ छो ले ली। ते कदी तजर्बा करके वेखना, एक गल जो कदी तुसी दूसरे नूं आखो, दूसरा तीसरे नूं आखे, तीसरा चौथे नूं आखे, चौथा पंजवें नूं आखे, ते 10 बंदियां कोल हो के जद ओ गल तुहाडे कोल आएगी, वो गल ओ नहीं होवेगी। गल दे फर्क पै जाएगा, लाजमी पै जाएगा, एकाग्रता बख्शने। इस वास्ते ब्रह्मा ने जो कुछ उचारण किया ते व्यास ने जो कुछ लिखिया, उहदे च मूल ते बहुत सारा खो ही गया। ते वेदां दे फिर ज्यादा इतिहास है, मिथ्यास है, मिथियां हुई गल्लां बहुत सारियां। होर अगां चलिए, हिंदुस्तान का दूसरा प्रमाणिक ग्रंथ गीता, ये उचारण की है कुरुक्षेत्र के मैदान जंग दे श्री कृष्ण ने। ते जब गीता नूं लिखती रूप दिता है किसने? इसे ही व्यास ने, जिसने वेद लिखे। गीता भी इसे दी लिखी हुई है, और यह भी पंजाब दे च लिखी गई, जो है दरिया ब्यास के कंढे ते। जदों उचारण हुई ते जदों लिखी गई, 200 साल का वक्फा है, 200 साल। ते 200 साल कोई गल मामूली ना समझना। मैदान जंग विच कृष्ण ने कुछ बोल बोले ने, लिखे नहीं गए। 200 वरियां बाद उन्होंने लिखती रूप दिता है ऋषि व्यास ने। गल बहुत सारी खो गई विच, कुछ जुड़ गई, कुछ खो गई, बहुत कुछ नष्ट हो गया, बहुत कुछ होर दा होर जुड़ गया। इसे तरीके नाल तवारीख का अध्ययन करने वाले सियाणे जानते हैं कि बोले हुए ईसा दे बोल जब बाइबल की शक्ल विच आए ने लिखते रूप में, 500 साल का वक्फा है। ये तो खुद मनते हैं, इन्हों के अपने उगे इतिहासकार। 500 साल का वक्फा ये कोई थोड़ा है। तो ईसा के टाइम भी लिखण की शैली का जन्म नहीं होया सी, कागज नहीं से, लोग पत्थरों के उत्ते कुछ खोद के माड़ा मोटा लिखते सन। अजे कागज के उत्ते लिखण की शैली का जन्म ही नहीं होया सी। इस वास्ते देखने विच आया है कि बहुत कुछ उत्थे भी मिथ्यास है। मेरे पढ़न विच आया जदों हजरत मुहम्मद साहब दे ते कुरान नाजल हुई है, 3 दिन आप बुखार रहा है, कंबड़ी चढ़ी रही है। उन्होंने भरोसा नहीं आता सी कि मेरा मन मिट गया है, अंदर कोई फुरना नहीं है। समाधि वाली अवस्था, कुछ परम प्रकाश का अंदरों जन्म, ते कुछ अनाहद नाद दियां धुनियां। एक अचनचेत जो घटना घटी, हैरान भी सन। और वाकई बंदा हैरान होता है
साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी ऐसा लिखा है, दिन एक अजब आत्म राम जय अमित तेज अवगत अकाम, ये कौन आए आत्म स्वरूप जय अमित तेज अवगत अभूत। साहिब कहते अभ्यासी बैठा सी अभ्यास दे जाप कर रहा सी ते जाप करदियां करदियां रसना खामोश हो गई, अजप्पा जाप चलन लग पिया। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुड़ जन्म ना आवा। ज्यों अजप्पा जाप चलन लग पिया ते परम प्रकाश हो गया। अनाहद नाद दियां धुनियां वजन लग पईयां ते हुणे पहली दफा होया जिंदगी च, इस तो पहले तो कोई बोध है नहीं। परमात्मा का बोध जद भी होंदा है पहली दफा ही होंदा है मनुख नूं। जद भी कभी मन जुड़ेगा रस मिलेगा ते मनुख दंग रह जाता है, भी इतना रस का सोमा मेरे कोल से ते जन्म दर जन्म मैं इतनी बेरसी व्यतीत कीते, सारी जिंदगी मैं इतनी बेरसी व्यतीत की, बड़ा पश्चाताप पैदा होता है। तो साहिब कहते ने इस अभ्यासी ने जो परम प्रकाश वेख रहा है, अनाहद नाद सुन रहा है, ये अंदरों सवाल पैदा होया, ये कौन आए आत्म स्वरूप, ये कौन है, एक ही है। हैरान जद भी कदी ये धुन बजदी है, जद भी कदी मनुख के अंदर इस परम प्रकाश का जन्म होता है, हैरानगी तो जरूर होगी। एक ही है ते कई दफा जरना भी औखा हो जाता है, इसनों बर्दाश्त करना भी औखा हो जाता है। साध के संग अजर जरे, संगत करनी भुल जाए तो कई दफा इस अजर वस्तु नूं जरना भी औखा हो जाता है। कहने कंबड़ी छिड़ गई तो बुखार चढ़ गया, इस हालत जिसका जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया है 10वें ग्रंथ दे। खदीजा उन्हां दी पत्नी है ते उन्हां नूं कहंदे ने अज मेरे अंदरों कोई बोलना चाहता है, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदरों कोई बोलना चाहता है। तो खदीजा कहती है फिर बोलो, जरूर बोलो, दबाओ ना बोलो। कहने वो कुरान दी आयतां सन जिहड़ियां हैं, ये फिर खदीजा ने लिखियां, उचारण कीतियां मुहम्मद साहब ने। गाहे बगाहे उन्होंने एक आयतां नाजल होंदियां सन, लिख लेंदे सन किथे, खजूर दे पत्तियां ते, कागज नहीं सी, चौड़े खजूर दे पत्तियां ते। अजे कागज की बनतर अरब देश विच नहीं हुई सी, अज तो गालबन 1400 साल पहले। कहंदे ने उन्हां खजूर दे पत्तियां नूं एक दिन बकरी ने मूंह च पा लिया, पै सन तरतीब अनुसार खा गई, बहुत वड्डी मेहनत नष्ट हो गई, बहुत वड्डी गल नष्ट हो गई। तो जदों ये आयतां मुहम्मद साहब ते नाजिल होईयां ते फिर जब दोबारा खलीफियां ने लिखियां 200 साल बाद, 200 साल का वक्फा, कुरान जदों उचारण हुई ते जद इसनूं कागज दे उत्ते लिखती रूप दिता गया, 200 साल का वक्फा है। ये थोड़ा गैप नहीं है, बहुत वड्डा है। और गीता जो कंठ तो उचारण हुई है श्री कृष्ण दे, कि जब उसनों लिखती रूप व्यास ने दिता है, वो वक्फा भी 200 साल है। 200 साल बाद लिखे गए ने वो श्लोक जो मैदाने जंग दे श्री कृष्ण ने अर्जन नूं सुनाए ने। ब्रह्मा के कंठ तो कुछ छंद निकले, कि जब उन्होंने लिखती रूप दिता है व्यास ने, 3000 साल का वक्फा है। जदों बोल उचारण होए तो फिर लिखे गए बाइबल दे 500 साल का वक्फा है। राम ने जो बनाई मर्यादा, उसनों स्वयं राम ने नहीं लिखिया। मर्यादा पुरुषोत्तम आप कहते ने, राम की मर्यादा नूं या लिखिया बाल्मीक ने या लिखिया तुलसी ने। ते दोहां रामायणा का जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का कभी पढ़ के वेखोगे, दोहां का मेल ही नहीं मिलता। वाल्मीक नूं सही मनीए कि तुलसी नूं सही मनीए, विचारां का मेल नहीं मिलता। और गजब की गल यह है कि जो वाल्मीक लिखते हैं वो कई दफा तुलसी रामायण विच है ही कोई नहीं, तो जो कुछ तुलसी लिखते हैं वो वाल्मीकि रामायण विच नहीं है। जैसे तुलसी लिखते हैं कि ढोर गवार शूदस पशु नारी, ए पांचो ताड़न हितकारी। शूदर नो, ढोल नो,
पशु नूं, नारी नूं, गवार नूं मारदे ही रहो, ताड़दे ही रहो, तां ठीक रहिंदे ने, उंज नहीं ठीक रहिंदे। लखनऊ असैंबली हाल दे एक MLA ने ये रामायण फाड़ दी सी, बड़ा शोर मचिया सी हिंदुस्तान दे। उन्होंने कहा जिस रामायण दे शूदर नूं पशु के मुकाबले ते खड़ा किया गया, बिठाया गया, उस धर्म ग्रंथ नूं धर्म ग्रंथ मनना भी धर्म की तौहीन है। ये धर्म ग्रंथ किस तरह हो सकता है जिहदे शूदर नूं पशु आख्या गया, ते निरा शूदर नूं नहीं, नारी नूं भी, इस्त्री भी पशु है, कुछ नहीं है। इनू ताड़दे रहो ते मारदे रहो। ते जे आ कोई राम की बनाई हुई मर्यादा है तां ते राम नूं अवतार कोटि दे च रखना भी बड़ा औखा हो जाएगा। ते जे आखो तुलसी ने लिख दिता है फिर कहना पेगा रामायण सारी गलत है, क्योंकि राम दे किरदार ते बोल पूरे नहीं उतरते। तो मैं अर्ज करा, जदों राम ने मर्यादा बनाई उन्होंने महात्मा तुलसी ने लिखती रूप दिता है, यह भी गालबन कोई 3-3.5 साल का वक्फा पै जाता है, थोड़ी गल नहीं। जहांगीर काल दे तुलसी होया, हुणे ही होया, तो बहुत लंबा चौड़ा अरसा नहीं होया ना। ते कदों त्रेता युग दे राम ने मर्यादा बनाई, कुछ बोल बोले, उन्होंने लिखती रूप देंदा है तुलसी, ते तुलसी रामायण हिंदुस्तान दे प्रचलित है। तो ये हज़ारां सालां दा वक्फा है। इस वास्ते सियाणे पुरुष कहंदे ने ये ते एक दिन के वक्फे नाल भी बहुत सारा फर्क पै जाता है, ते जिथे हज़ारां साल का वक्फा होवे उत्थे मूल खो जाता है, असलीयत खो जाती है, हकीकत खो जाती है। हुण जिहड़ी गल मैं करना चाहना होए कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का जो उच्चारण है ते जो बनतर है, इत्थे उच्चारण करन वाले विच ते एक लिखण वाले च कोई फर्क नहीं है, नाले समय का फर्क भी नहीं है, समय का अंतरा नहीं है। ये नहीं कि अज उच्चारण किए गए तो कल लिखे गए, उस वक्त लिखे गए। गुरु नानक नूं जदों बाणी नाज़िल होंदी सी, सतगुर उस वक्त आप लिखते सन। सतगुर दे कोल बकायदा एक किताब होंदी सी, जिहदा जिक्र भाई गुरदास जी भी करते हैं। आसा हथ किताब कछ पूजा बांग मुसल्ला धारी, ये पातशाह कोल एक पोथी होंदी सी, जिथे बाणी नाज़िल हुई सतगुर लिख लेंदे सन। बाणी पहले पोथियां दे रूप में सी, पोथी साहब पहले पातशाह तो दूजे पातशाह को आईयां, तीजे को आईयां, इस तरह बाणी संग्रह होंदी गई, चौथे पातशाह को आई, फिर पंजवें को आई। पंजवें पातशाह ने रामसर दे बैठ के तरतीब दिवाई है। लिखण वाले ने भाई गुरदास जी ते उच्चारण करने वाले ने गुरु अर्जन देव जी। समय का अंतरा नहीं, इधर उच्चारण हो रहा है, इधर लिखिया जा रहा है। फिर गिणती भी नाल है, शब्दों की बकायदा गिणती चलती है। एक शब्द भी कोई घटा नहीं सकता, एक शब्द भी कोई बढ़ा नहीं सकता। जिन्होंने कभी सिलसिलावार बाणी पढ़ी है, पंक्तियां की भी गिणती है, और जिस जिस पातशाह की बाणी है उसकी वख गिणती है। तो पूर्ण तौर पर एक राग में जितने शब्द ने, यह गिणती तीजी वख चलती है। कौन घटाएगा तो कौन बढ़ाएगा। दूसरी गल ये कि दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों के कुछ इतिहास है तो कुछ मिथिहास है। जैसे कहा जाता है पुराणिक साखियां वैदिक काल में चल रही, बई हनुमान ने सूरज नूं मूंह दे च पाया ते 3 दिन अंधेरा ही बनया रहा। तो हिंदू वीरां नूं कहना पेगा ये मिथिहास है, इतिहास नहीं है। गौतम ऋषि ने गिला परना मारिया चंद्रमा नूं ते चंद्रमा काला हो गया, मिथिहास है, इतिहास नहीं। इन्ना वड्डा परना कित्थों आ गया, इस इतने वड्डे चंद्रमा नूं किस तरह दागी कर दिता। ये निरे मिथिहास तो इलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस तो इलावा बई खीर दे सागर नूं रिड़किया गया, दुध दा सागर से, ते जे दुध दा सागर ही है तो गौवां दी ते फिर लोड़ ही कोई नहीं सी। ते फिर दानवां ते देवतियां ने मिल के रिड़किया उस दुध दे सागर नूं, खीर दे सागर नूं, ओहदे चों निकले 14 रतन। मिथिहास है। कहते हैं हिमालय जिहड़ा है ना, इहनूं सुमेर पर्वत कहंदे ने।
पुराना ना धर्म ग्रंथां च सुमेर है, क्योंकि इत्थे ज्यादातर गुलाबी रंग की बर्फ पई आउंदी हर वक्त 12 महीने, ते पीले रंग की जो धुप पैंदी है तो चमकदा सोने की तरह चमकदा, इहदा नाम सुमेर पै गया, सुमेर पर्वत। ते हुण सुमेर पर्वत का बनाया गया मधाना ते खीर सागर सी, दुध का सागर, ते दानवां ते देवतियां ने मिल के रिड़किया, विचों निकले 14 रतन। मिथिहास है, इतिहास नहीं। इस तरह हुण तुसीं सारियां साखियां पढ़ते जाओ, मिथिहास है और कुछ नहीं। मिथिहास तो बाद फिर इतिहास है, किहड़ा किहड़ा देवता किथे किथे जमे, उहदे माँ बाप कौन ने, उन्हें की कुछ कीता है। रामायण दे इतिहास चलता है, वेदां च इतिहास चलता है, गीता च इतिहास चलता है, मिथिहास चलता है, भागवत गीता दे महाभारत दे इतिहास चलता है, मिथिहास चलता है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने इस दृष्टिकोण नाल तुसीं पढ़ो, ना इतिहास है ना मिथिहास है। किसी गुरु का इतिहास नहीं है इत्थे, किसी भगत का इतिहास नहीं है। जे किधरे कुछ किसी शब्द ऐसा प्रतीत होता है प्रमाण मात्र, लड़ीवार कोई इतिहास नहीं है। ना इतिहास है ते ना ही मिथिहास है। ऐसी कोई कपोल कल्पना भरी गल भी नहीं की गई जिसनों अज विज्ञान साइंस गलत साबित कर दे, ऐसी कुछ भी नहीं आखी गई। जैसे विज्ञान ने गलत साबित कर दिता है भी हनुमान ने सूरज को मूंह विच पाया, 3 दिन अंधेरा बनया रहा, इतने साइंस की गल पूरी नहीं करती। चंद्रमा को गिला परना मार के दागी कर दिता गया, ये सारा मिथिहास। इस तरह का मिथिहास गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच नहीं है। फिर इतिहास भी नहीं है, तो फिर एक ही है, ये ब्रह्म दे गीत ने, ये परमात्मा का वचन है, ये ईश्वरी ज्ञान है, नाजल होया है। ये गुरु नानक देव जी महाराज भी एक पासे हो गए ने, गुरु अर्जन देव जी भी एक पासे हो गए ने। निरोल जिस ढंग नाल रब बोले है उसे नहीं बोलन दिता, इतिहास नूं नहीं आण दिता, मिथिहास नूं नहीं आण दिता। कहते ने जब बाणी की बनतर हो रही सी, पहले पातशाह तो दूजे, दूजे तो तीजे तक ये पोथियां सिलसिलावार आईयां, तो कुदरती गल है देश के हलचल ते मचनी सी थोड़ी बहुत। ब्राह्मणों ने आके गुरु अमरदास जी महाराज के अगों बेनती की, महाराज इस देश दे 18 पुराण ने, 27 सिमरतियां ने, 6 शास्त्र ने, 4 वेद ने, 108 के करीब उपनिषदां ने, इस तो इलावा होर छोटे मोटे अनेक ग्रंथ ने, ते थानू नवा ग्रंथ बनाने की की लोड़ पै गई है। कोई पढ़िए, वक्त कोई नहीं बंदे को इतना, सारी जिंदगी भी ली नहीं कर सकी ते सारा पढ़ नहीं सकते, ते तुसी नवे ग्रंथ की सिरजना करन लग पे हो। आखिर केड़ी लोड़ तुसी महसूस की है? ये गुरु अमरदास जी महाराज के वाक ने। आप कहते ने जैसे धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्य पानी ना है? बड़ा सोहना जवाब है, बड़ी सुंदर पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी। महाराज कहते पहले मैनू दसो, धरती के उपर मीह पैंदा है ते धरती हरी भरी हो जाती है, क्या धरती दे विच पानी नहीं है? जब विच पानी है धरती दे, ते फिर उपर बरसन की लोड़ पै गई है? थोड़े सवाल का यह जवाब है, जब इन्ने धर्म ग्रंथ ने तो होर धर्म ग्रंथ की की लोड़ पै गई है? मैं ये कहना कि जमीन के थले पानी है तो उपरों बरसन की की लोड़ पै गई है? ये गुरु अमरदास जी महाराज का जवाब है। ते ऐ तर्कवादी हो, अगर धरती के थलों पानी कढ़िए खूह बना के, तो कितना धरती नूं सैराब करेगा? कितनी थां नूं सैराब करेगा? बहुत थोड़ी थां, बहुत थोड़ी थां। उच्चे टिब्बे रह जाएंगे, मरुथल रह जाएगा, पहाड़ के कंदरां जिहड़ियां ने वह रह जाणगियां। बदल सारी थां ते बरसदा है, सारी थां ते। थोड़े जिहड़े पुराने धार्मिक ग्रंथ ने वह खूह ने, पानी उन्हें जरूर है, प्यास जरूर बुझदी है, पर हुण किसे कोल रस्सी होवे, डोल होवे ते खिंचण की समर्था भी होवे तां ही कुछ कढ़ सकेगा ना। पहले तो इन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़न वास्ते वो संस्कृत सिखे, ते 33-35 साल के करीब वो संस्कृत
ਤੇ व्याकरण ये सारी सिखां दे च लगा देवे, फिर इन्हां दे अर्थ बोध पढ़े तो सारी जिंदगी तो इसे च खप जाएगी। ते जे किधर कद डोल पानी का लभ्या वे तो पता नहीं मिलना भी है कि नहीं, वो भी डुल जाएगा आउंदे आउंदे तक। जिंदगी इतनी इस दे विच लीन हो जाएगी, खचत हो जाएगी। असी जो उस बाणी का उच्चारण कर रहे हैं उहदे च विखमता नहीं है, वो खुली है, मनुख की आम बोल चाल की भाषा दे च है और शब्दों को छुपा के मिथिहास ते इतिहास नाल नहीं जोड़िया गया। इस वास्ते ये बदलों का पानी है, वो धरती दे विच दा पानी है। शांत कर दिता और कह दिता है ब्राह्मण तेरे वेद तेरे तो बिना होर कोई नहीं जानता, और तू ही पुठे सीधे जो अर्थ करें वही है। असी उस बाणी का उच्चारण किया है जिसनों हर एक पढ़े ते पढ़ के जुड़े। ब्रह्म दे गीत, प्रभु दे गीत, और इसनों इशारत नहीं जो आख्या गया है ये अकाल पुरख का खजाना है। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना ता मेरे मन बयान दाना है तो ये खजाना। और इतनी गल भी स्पष्ट है, इसकी पूजा भी असी बहुत की है। मैनू एक छोटी जी गाथा चेते आई, बिस्तरे मर्ग देते है, एक बुढ़ा आखिरी दमा ते है, उहदे 2 मासूम बच्चे ने कोल बैठे ने ते उन्होंने कहंदा मैं ते जा रहा जगत तो रुखसत हो रहा, ए बक्सा संभालो, ए चाबी लो, ताला लगे होया, मेरे बाद थोड़े कम आवेगा। दम तोड़ गया बुढ़ा। इन्हां 2 मासूम बच्चियां ने बक्से नूं तख्त पोछते रखिया, उपर कीमती दुशाला उड़ाया ते हुण रोज सवेरे शाम उहदी परिक्रमा करन, उहनूं मत्था टेकन, उहनूं धूप दीप करन, उहनूं फुल देण बई साडे प्यो दा ये दित्ती हुई एक सौगात है, साडे पिता दी दित्ती हुई एक देन है। समय की गति के मुताबिक ये जवान होए, विआहे गए, बाल बच्चेदार होए ते रब दी नेत मुखलिस हो गए, अत्यंत मुखलिस हो गए, बहुत ही मुखलिस हो गए। इन्ने मुखलिस कि रोटी तो भी आतर होए। अज किसी संत ने द्वार ते आके दस्तक दी, खटखटाया किसी ने द्वार, ये दोवें बूआ खोलते हैं, की देखते हैं एक संत कुछ भिक्षा पात्र लैके अगे खड़ा है। ये दोवें कहते ने संत जी अज ते साडे पेट का पात्र ही खाली है, थानू असी कुछ नहीं दे सकते। उस संत कहने लगा मैं कुछ देन आया, वेखो तो सही कुछ देन आया। कभी बगौर मुताला करना, कईयां दा देना लेना होंदा है, कईयां दा लेना देना होंदा है। देखण नूं लैण आया है, पर जे थोड़ी जी गहरी दृष्टि होवे तो कुछ देन आया है। कहंदा मैं ते कुछ देन आया। की देन आया? एक संदेश सुनिया थोड़े पिता ने थानू कोई बक्सा दिता सी? हाँ दिता है। असी रखिया तक सोचते, असी परिक्रमा करते हैं, असी सवेरे शाम मत्था टेकते हैं, असी कीमती दुशाला उड़ा रखे है, ये तो ठीक है। खोल के देखिया कहने लगे नहीं, खोलिया तो नहीं। वो संत कहने लगा बस मैं इन्ना ही संदेशा देन आया, अज खोल के वेख लेना, जरूर खोलना। इन्नी गल कह के चला गया ते दोवां भरावां नूं ख्याल आया भी असी काफी समय तो परिक्रमा भी करी जाने, सजदा भी करी जाने, खोलिया नहीं, वेखिया नहीं। चाबी लैके ताला खोलिया, जो बक्से नूं खोलिया ते सोने ते चांदी दी मोहरां नाल भरिया होया सी। हैरान हो गए, इन्ना धन साडे कोल ते मुफलसी दे विच जिंदगी बतीत कीती, दुखां दे विच जीवन बतीत कीता। ये कहानी चाहे गलत होवे पर एक बिल्कुल ठीक है। 10 गुरु साहिबान ने एक बहुत वड्डा खजाना
गुरु ग्रंथ साहब के रूप दे सानू दिता, साडी भेटा कीता, बहुत वड्डा खजाना। सदियां तो असी पूजिया ते है, इस खजाने विच जो कुछ है उन्होंने नहीं खोलिया। इस वास्ते खजाने दे होंदियां होया भी कंगाल, कुछ भी नहीं। निर्वैर का खजाना है, वैर नाल भरे होया। ज्ञान का खजाना है, अज्ञानता च धक्के पै खांदे हैं। सुखां दा ये सार है, दुखां दे च पै भटकदे हैं। एकता की यह मूर्ति है, दुबदा दे च पै रोंदे हैं। कारण कि इस खजाने नूं नहीं खोलिया, इस खजाने नूं खोल के नहीं वेखिया। ते मैं फिर अर्ज करा, दुनिया के जिन्ने धार्मिक ग्रंथ ने उच्चारण करने वाले ते लिखण वाले च वक्फा है। इस वास्ते कोई सही रूप दे दावा नहीं कर सकता कि गीता वाकई श्री कृष्ण दी है, वेद वाकई ब्रह्मे दे ने, कोई दावे नाल नहीं कह सकता। तुलसी दे लिखे हुए वाक वाकई ये राम दे वाक ने, कोई दावा नहीं। ते बाइबल दे ये गीत वाकई ईसा दे ने, कुरान दियां ये आयतां वाकई मुहम्मद दियां ने, कोई दावा नहीं कर सकता। ऐसा दावा भी फोका होगा, क्योंकि उच्चारण करना ते लिखण दे च सैकड़े साल का वक्फा है, इत्थे कोई वक्फा नहीं। उसे वक्त उच्चारण हो रहा है, उस वक्त लिखिया जा रहा है। पहली बीड़ दे उच्चारण करता गुरु अर्जन देव जी, लिखारी भाई साहब भाई गुरदास जी। ये सौगात ये दात भाई गुरदास जी के हिस्से च आई। समा पा के जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दमदमे साहब बीड़ तैयार करवाई, तो उच्चारण करता वो आपने लिखारी भाई मनी सिंह ने। जिहड़ी बीड़ अज गुरुद्वारियां च प्रकाशमान है, इनू आपां दमदमे साहब की बीड़ कहने हैं। दमदमे साहब की, एक करतारपुर साहब वाली बीड़ नहीं है, उहदे च गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नहीं है। ये बाणी जोड़ी है साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। तो मैं इन्नी अर्ज करा, जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी जुड़ गई तो मनी सिंह जैसे ने जरूर सवाल करना सी, महाराज थोड़ी बाणी नहीं है विच, एक पंक्ति भी गुरु गोबिंद सिंह जी की गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं है, एक पंक्ति भी। ते मनी सिंह कहता है, महाराज थोड़ियां विचारां कुछ होर ने ते गुरु नानक की विचार कुछ होर है, गुरु अर्जन देव जी की शब्दावली कुछ होर है ते थोड़ी कुछ होर है। तुसी अपना अलग ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि दसम ग्रंथ देवी लिखा रही हो आप, ये अलग क्यों लिखे है? थोड़ी बाणी वख क्यों है? तो पता उसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो कुछ कहा है, वो यही मनी सिंह, जो मैं लिखे है उहदे च इतिहास है, उहदे च मेरी अपनी कथा भी है। दसम ग्रंथ सतगुरु की अपनी कथा है। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जय बिद मोहे आनो, अपनी कथा है, ये मेरी अपनी कथा है, बहुत सारी। मैं अपनी कथा नूं अकाल पुरख की कथा दे च नहीं लिखना। गुरु ग्रंथ साहब अकाल पुरख की कथा तुसी नहीं लभ सकते। किसी गुरु का किथे जन्म होया, कौन मां बाप सन, कौन पत्नी सी, कौन साहिबजादे सन, कुछ नहीं लिखे। जो मैं लिखे है उहदे च इतिहास है मेरा। मेरी जमीर नहीं मनती कि मैं अकाल पुरख के गीतां दे च ब्रह्म ज्ञान दे च अपना इतिहास लिखा। ते मनी सिंह किथे चुप करने वाला सी, खालसा बड़ा सावधान हो चुके सी। मैं इन्नी अर्ज करते हैं, एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने परीक्षा भी लेनी चाहिए सी, बे देखिए तो सही ये सिख किसी को रोक भी सकते हैं गलत करदे होया कि नहीं। जयपुर तो गालबन है कोई 15-16 मील की दूरी ते नरैणा एक पिंड है, जिथों लंघते मेरे पातशाह हजूर साहब जा रहे सन नांदेड़, राजस्थान के चो लंघ के गए हैं। और इतिहासक चिन्ह यादगारी स्थान रस्ते च बने हुए हैं। बुरहानपुर बने हुआ है, इंदौर बने हुआ है, इसी तरह नरैणे बने हुआ है। गुरु नानक देव जी भी इतों ही लंघ के गए हैं जब रामेश्वरम गए हैं। तो इसे रस्ते देते तमाम गुरु नानक देव जी के भी इतिहासक स्थान बने हुए हैं। बेटवा बने हुआ है, इंदौर बने हुआ है, ओंकार जी बने हुआ है, बुरहानपुर गुरु नानक देव जी महाराज का स्थान कावेरी के कंढे ते बने हुआ है। तोड़ तक भारत गुरु गोबिंद सिंह जी
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇव जी महाराज ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨਰੈਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾਦੂ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਨਾ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ ਬ੍ਰਤ ਗੋੜ ਮੜੀ ਮਠ ਭੋਲ ਨਾ ਮਾਨੇ। ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਮੜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਕਬਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਭਟਕਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜੋੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਭਟਕਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 70 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਜਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜੇ 70 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਓਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਹੀ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕਿ ਭੇਡਾ ਵੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੇਡਾ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। तो मैं अर्ज कर रहा सी, मनी सिंह ने एकदम सवाल कर लिया, हौसला से खालसियां दा, सुतंत्र सन। पातशाह तुसी अपनी कथा आप क्यों लिख रहे हो, की लोड़ पै गई है? क्योंकि श्री कृष्ण की जीवन कथा वेद व्यास ने लिखी है, कवि सूरदास ने लिखी है, कवि नरोत्तम ने लिखी है, तुलसी ने लिखी है, हृदय राम ने लिखी है। ते तुसी अपनी कथा क्यों लिख रहे हो? आप थोड़ी कथा भी कोई लिख देगा, अपनी कथा आप क्यों लिख रहे हो? यदि की लोड़ पै गई है? साहब कहने लगे, सुन मनी सिंह, मैं देखदा जद सूरदास नरोत्तम ते कैसो दत्त भावना दे वेग दे आए ने ते उन्होंने कृष्ण नूं भगवान कह दिता, भगवान रब। इस तरह ही व्यास ने ते मनी सिंह जद तुलसी ते बाल्मीक श्री राम की कथा लिखण लगा है, आया भावना दे वेग विच उन्हें राम नूं भगवान कह दिता। मैनू डर लगता है कोई मेरी जीवन कथा लिखे ते लिखदियां लिखदियां मैनू ही रब कह बैठे, मैनू ही परमात्मा कह बैठे, तो वह बंदा फिर मेरी कीती किताई ते पानी फेर देगा। जो कुछ मैं करना चाहता से वो तो सब कुछ दब जाएगा। इस वास्ते मैं अपनी कथा आप लिखी है, और उस कथा ये बोल ने, जो हमको परमेश्वर उचरें ते सब नरक कुंड में पड़े, मुको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। जिड़ा मैनू रब करके आखेगा कुंभी नरक च जाएगा, मैं उदा दास हाँ, मैं उदा सेवक हाँ। 10 गुरु साहबान रब तो एक पासे हो गए, जब सिख नूं सीधा रब नाल जोड़ना है आप एक पासे हो गए। इतना ही काम होंदा है गुरु दा, सिख नूं परमात्मा दे दर तक पहुंचा देना। ऐसा नहीं कि दर तो पहले आप ही विचे खड़े हो जाना, हुण मेरे नाल ही जुड़ो, हुण मैं ही रब हाँ, हुण मैं ही परमात्मा। जगत विच इसे तरीके नाल हो रहा है, संसार विच इसे तरीके नाल हो रहा है। इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा व्यक्ति की पूजा नहीं है, इतिहास की पूजा नहीं है, मिथिहास की पूजा नहीं है, निरोल अकाल पुरख की पूजा है।
निरोल परमात्मा की पूजा है, क्योंकि परमात्मा तो बिना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे होर कुछ नहीं। स्वयं भगत कबीर भी कहते हैं, कबीर दा ये फरमान लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, ये तो निरोल ब्रह्म विचार है। ये गीत नहीं है, ये निरी छंदाबंदी नहीं है, ये निरी शैली शब्दावली नाल पढ़न की कोशिश भी ना करना। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म दी विचार है, ये तो ब्रह्म के मूल सिद्धांतिक नुकते ने। जुड़दियां ही गल बनेगी, पढ़दियां ही गल बनेगी, सुनदियां ही गल बनेगी। इते कोई गावे को सुने, हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। तो मैं अर्ज कर रहा सी, पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज उच्चारण करता ने, भाई गुरदास जी महाराज लिखारी ने, तैयार हो गई पावन बेड़। तो मैं अर्ज कर रहा सी, पहले गुरु अर्जन देव जी महाराज उच्चारण करता ने, भाई गुरदास जी महाराज लिखारी ने, तैयार हो गई पावन बेड़। और जब प्रकाश दा दिन आया करना है, रामसर साहब तो दरबार साहब तक गुरु अर्जन देव जी महाराज जलूस की शक्ल दे चले गए। अज भी उत्थे यही कुछ होगा, अज भी रामसर तो बकायदा जलूस निकलणगे, दरबार साहब तक पहुंचणगे। उस मर्यादा नूं अज भी कायम रखा होया है। बहुत गहमा गहमी होगी और चारों पासे गुरबाणी का प्रचार, मंगल धुनियां चारों पासे वजणगियां। पहला प्रकाश होया और प्रकाश किया बाबे बुढ़े ने, और सब तो पहले मत्था टेकिया गुरु अर्जन देव जी ने। इतिहास तुसी पढ़ोगे, संगतां होर बैठियां ने। प्रकाश किया बाबे बुढ़े ने, खड़े होके फिर सजदा किया आके, पहले गुरु अर्जन देव जी ने, फिर सारियां ने। उत्थे ही खड़े होके सतगुरु ने ये वाक कहे ने कि मेरे स्वरूप ते याते है दीर्घ, साहिब जान अदायब कहे। ये मेरे स्वरूप नालों वड्डे ने। मैं अज हाँ ते कल नहीं, और मैं सारी थां ते नहीं हाँ। ये जुगो जुग अटल ने, सारी थां ते ने, हर थां ते मौजूद ने। इस वास्ते मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, खिमा करनी। जैसे जैसे तुसी बाणी पढ़ोगे ते कन्ना नाल सुनते जाओगे, शब्द अंदर प्रवेश करनगे, गुरु की जिहड़ी अहमियत है, अजमत है, उदों ही प्रगट होगी, अजे नहीं। अजे तो जिहड़े फोके झगड़ियां च असीं पए हां, उस तो ही पता चलता है अजे शब्द दे नाल ते साडा दूर का भी संबंध कोई नहीं, नेड़े दी ते गल ही छड्डो। जद अंदर बाणी प्रवेश करेगी, बाहरों बाणे का जन्म होएगा। मैं इन्नी अर्ज कर दिया, अजे तो बाणा भी कोई नहीं, ते बाणे दे ना होना इस गल का सबूत है, अंदर बाणी कोई नहीं। इस बाणी ने विशेष एक ऋषि मुनि का बाणा दे देना है, एक साधु संत का बाणा दे देना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिख संत ना होवे। ते संत भले गुर सिख हैं, जिन नाही चिंत पराई चुखा। सतगुरु कहते सिख ही संत है। केड़ा सिख? जिहदे अंदर बाणी वस जाए, जिहदे अंदर शब्द वस जान, तो वह बाणी उन्होंने साधु बना देगी, संत बना देगी। तो मैं तो देखता पाया साधु संत की बनाने, तो बाबू बन गए ने, बिल्कुल बाबू बन गए ने। एक गल वखरी, बाबू जी आखो तो चिड़ते भी हैं बाबू जी। संत तो कोई नहीं, ऋषि तो कोई नहीं। ऋषि मुनिया की शक्ल होंगी है, ऋषि मुनिया का एक रूप होता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 300 साल जब शहीदी पुरब रामलीला ग्राउंड में मनाया गया, उन्होंने दिनों देश के एमरजेंसी लगी हुई सी। एक एक बोल वक्ते बड़े संभल के बोलते पे सन, मत किधरे पकड़े जाइए, मत किधरे गड़बड़ हो जाए। देश के हालात इस तरह के सन। खैर, उस रामलीला ग्राउंड में कुछ चंद अखर उतों की फिजा ने, उतों की हवा ने मैनू दे दिते। और अखबारी रिपोर्टरों की जो गिनती सी, जो उन्होंने अखबारों छापी कि घट तो घट ये 22 लाख मनुखों का इकट्ठ है। 22 लाख तो घट नहीं होंगे। और जब वक्त दी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा ये पहुंची है स्टेज पे, तो ये जब देख दी है दूर तक, तो कहती है मैं तो दूरबीन लिया ही नहीं, तो सारी संगत मैनू दिसदी नहीं पई। मैनू पता होंदा मैं दूरबीन लियानी सी। कोल प्रिंसिपल सतबीर सिंह बैठे सन, इन्हां दे मूंहों निकल गया, सानू दूरबीन नाल ना वेखो, उंज ही नेड़े वेखण की कोशिश करो। कटाक्ष कर दिता, उंज ही वेखण की कोशिश करो।
क्योंकि हुण काफ़ी समा हो गया दूरबीन नाल देखदियां ही देखदियां। कदी नेड़े भी आओ, कदी सानू नेड़े वेखण दी कोशिश भी करो। किसने इस जनेऊ नूं बचाया ते किसने इस तिलक नूं बचाया? किसने गिरदे हुए मंदिरां नूं बचाया जिहड़े ढेर ढेरी हो रहे सन? सुभाविक एक गल याद आई है, मैं फिर पुष्टि करा। चौथी क्लास च मैं पढ़दा हुंदा सी खालसा स्कूल दे। हुण ते खालसा स्कूल नाम मात्र ने, सिर्फ नाम मात्र, और कुछ नहीं ने। साडे धार्मिक स्कूल भी नाम मात्र हो गए, गुस्ताखी माफ, ते असी धार्मिक मंदिरां नूं भी नाम मात्र कर दिता है। ये ते टकसाला ने, घड़िए शब्द सची टकसाल टकसाल है, ते इत्थों घड़ना है सिखी नूं ਸਿੰਘਾਂ नूं, ये ते टकसाल है। ते जे इत्थों साल दे साल कुछ सिख घड़े ही नहीं जाते तो फिर खिमा करने टकसाल बनाने का मतलब कि लाखां डॉलर खर्च कर देते, कुछ घड़े जा रहे हैं जिंदगी, कुछ सिख बन रहे हैं, कुछ सिंह बन रहे हैं। अज पहला प्रकाश है, कोई ऐसा सोचता है कि चलो अज मैं बाणी का प्रकाश करना है, गल खत्म। मैं कबूल करदा कि जे ऐसा भी ना कबूल कोई करे तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश उत्सव मनाना, खिमा करनी थानू ना गल चंगी लगे तो गल वखरी, सिवाय पखंड तो और कुछ नहीं। कुछ तो प्रकाश करो अपनी जिंदगी, कुछ तो अपने जीवन में प्रकाश करो। ज्ञानी हरि सिंह साडे ज्ञानी टीचर होंदे सन, ते उन्होंने एक आप बीती बच्चों उस दिन सुनाई बिठा के। इधर पाड़ा चनार का इलाका है, फ्रंटीयर दे ठंडा हिल स्टेशन है, तो गर्मियों के दिनों उत्थे काफ़ी जो है सैलानी पहुँचते हैं। उत्थे एक छोटा जिहा सरोवर, तो ज्ञानी जी कहने उत्थे एक सज्जन नहा रहा सी, नाल उसका छोटा बच्चा। तो एक होर सैलानी उसकी शक्ल सूरत तो इंज पता चले किसी यूरोप के देश चो आया है। कैमरा उसके कोल थां थां दियां फोटोआं लैंदा फिरदा सी। वो जिहड़ा नहा रहा है, अचनचेत उसका बच्चा डूंगे पानी च चला गया, तो उन्हें चीखना शुरू किया, बचाओ मेरे इस बच्चे नूं बचाओ। यूरोप तो आया होया वो सियाह, उन्हें गल चो कैमरा नहीं उतारिया, कपड़े नहीं उतारे। उन्हें सोचा जी इतनी मैं देर की, बच्चा डूब जाएगा, एकदम छाल मार दी भज के। डूंगे पानी विचों वो बच्चे नूं कढ़ के ले आया, और उस मारवाड़ी ने बच्चे नूं गल नाल लाया, प्यार किया, एकदम चल पे। कहने यूरोप तो आया ये सियाह घूर घूर के वेखे ते मत्थे ते तीवड़ियां भी पै गईयां। ज्ञानी हरि सिंह कहते मैं कोल गया भी तू इतना वड्डा परोपकार का काम किया है, तेरे मत्थे ते वट क्यों पै गए, ये तीवड़ी क्यों पै गई, इतने नहीं पैनी चाहिए सी। वो आखन लगा गल ये नहीं है कि साडे देश कोई छोटी मोटी चीज़ किसी की गिरी हुई चुक के दे देवे, अगला थैंक्स जरूर करता है। तो मैं गहरे पानी च गया, जिंदगी नूं हथेली ते रखिया, बच्चे नूं कढ़ के लिया, उन्हें अपने बच्चे नाल ते प्यार किया, उन्होंने भी गल नाल लाया, लैके भी चला गया, मेरी तरफ वेखिया तक भी नहीं। धनवाद तो एक पासे, वेखिया तक भी नहीं। मैं इस गल ते हैरान हाँ। ज्ञानी हरि सिंह दे बोल सन, कहंदे मैं जवाब दिता, ये वो देश है जिस देश के बच्चों की बचाने की खातर जिसने अपने बच्चे खुआ दिते सन, देश की संस्कृति बचाने की खातर जिसने अपना पिता शहीद करा दिता सी, इन्होंने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा की खाक करनगे। एहसान फरामोशी इस जर्रे जर्रे विच समाई हुई है। चाहिदा तो यह है कि सारा हिंदुस्तान गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के एहसान के थले दबे ते मन्ने, ये उल्टा पुठे पैंदे पे ने, उल्टा उस संस्कृति नूं मिटाण की कोशिश है। और उन्होंने साड़ी कमजोरी भी दिस पई है भी ये आपस ही लड़ते हैं, जी ताकत इन्हों कोल है आपस ही लड़ते हैं। जो आपस लड़े कौम दरोई है, बस इन्ना समझ लो, वही गुरु दरोई है, वही कौम दरोई है। मैं उत्थे रामलीला ग्राउंड के 4 शब्द कहे बई साल दे साल इत्थे रामलीला खेडी जाती है, और इन्ना वड्डा ग्राउंड ये दिल्ली का, इसका नाम ही रामलीला ग्राउंड है।
और जिस दिन पहली रामलीला उत्थे खेडी जाती है, पहले देश का राष्ट्रपति राम नूं तिलक देण वास्ते आंदा है। अज भी चाहे वह राष्ट्रपति मुसलमान होवे, जाकिर हुसैन आउंदा सी, फखरुद्दीन अली अहमद नूं मैं देखिया तिलक लांदे आया राम नूं। चाहे हिंदू होवे ते चाहे मुस्लिम होवे, सिख नूं ते अजे मौका दिता ही नहीं, शायद कदी देण भी ना, लेकिन तिलक लांदे रहे। ये सिलसिला मैं उत्थे देखिया तो मैं उत्थे चंद शब्द कहे भी ये रामलीला ग्राउंड है ते राम नूं इत्थे स्टेज ते पेश किया जाता है, ते जूड़े तो बिना राम किथे, दाड़े तो बिना विश्वामित्र किथे, लंबे दाड़े तो बिना विशिष्ट जी किथे। ये सारा स्वरूप पेश करना पैंदा है। ते जिहड़ी रामलीला कमेटी है ना इत्थों दी, और फिर बाजारों जूड़े खरीद के लियांदी है ते दाड़ियां खरीद के लियांदी है। ते मैं उत्थे चंद शब्द भी कहे भी मद्रास दे ते जयपुर दे जिथे दाड़ियां बनदियां ने, जूड़े बनते ने, मैं वो कारखाने वेखे ने। उत्थे कुछ ते बंदियां दे वाल आउंदे ने ते कुछ गऊ दी पूंछ दे वाल, घोड़े दे पूंछ दे वाल कट्ठे करके दाड़ियां बनाईयां जांदियां, जूड़े बनाए जाते। ते उत्थे मैं कह दिता, मैं कि असली भारत दे वासी असी हाँ, बाकी सब नकली ने। क्यों? साडे सिर ते जूड़ा राम वर्गा, साडे मुखड़े ते दाड़ी विश्वामित्र वाली विशिष्ट दी। तुसी ते सारे भारत का पुराना रूप ही गवा बैठे कि तुसी हक की रखते हो भारत के मालक बनन दे, इहदे सरपरस्त बनन दे। ना तुहाडे कोल रंग, ना तुहाडे कोल रूप। साडे कोल भारत का रूप है, साडे कोल भारत की संस्कृति है, साडे कोल भारत का ज्ञान है, ते भारत वास्ते कीतियां हुई कुर्बानियां ने। तुहाडे कोल कख भी कोई नहीं, बन गए हो लखां दे, साडे कोल लख ने पर बन गए कखां दे। गल कुछ उल्टी हो गई। ते एक सज्जन मेरी बार बार लत खिंचे, उहदी लत खिंचण तो मुराद इन्नी सी बई एमरजेंसी लगी हुई है, ढंग नाल बोल, गल जिहड़ी सी इतनी सी। जज्बात कदी कदी उछल पैंदे ने। ते मैं आखा मनाई जा रही है अज शहादत जो है दिवस साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का, भारत के पुराने तिलक नूं बचाउण दी खातर, भारत के पुराने जो है जनेऊ नूं बचाउण दी खातर। जनेऊ ते तिलक दे गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी कोई पुजारी नहीं, मैं इन्नी अर्ज कर दिया। 9 साल के गुरु नानक ने ते ब्राह्मण जनेऊ पहनाना चाहता है, इनकारी नहीं पहनना। 9 साल के गोबिंद राय ने गुरु गोबिंद सिंह ते अपने पिता नूं कहंदे ने कि तिलक नूं ते जनेऊ नूं बचाउण दी खातर कुर्बानी देनी पैगी, दिओ। और ये विरोधी इतिहास है। उधर गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल दे ने, इधर गुरु नानक देव जी 9 साल दे ने। हैरानगी है मेल किस तरह खा गई ये गल। घर दे सारे बेदी इकट्ठे हुए ने, पिता कालू जी वड्डे ब्राह्मण नूं बुला लिया ने, तरह तरह के पकवान तैयार होए ने, बच्चे का यज्ञोपवीत कराना है, जनेऊ पहनाना है। ते बच्चा खड़ा हो गया, कहता नहीं मैं नहीं पहनना, किसी कीमत ते नहीं पहनना, मैं इस तरह के जनेऊ नूं धारण करने वास्ते जगत दे च नहीं आया। खैर लंबी चौड़ी उत्थे वार्ता हुई, सतगुरु दे बचन दर्ज ने। पर जब तिलक ते जनेऊ का मसला, ब्राह्मणों का मसला बड़ा पेचीदा होया, उदों 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह कहते ने नहीं ये बचाना है। दरअसल गल की है, ब्राह्मण जबरन जनेऊ पहनाना चाहता सी ते औरंगजेब जबरन उतारना चाहता सी। गुरु नानक ने कह दिता जबरन पहनना नहीं, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने कह दिता जबरन नहीं उतारन देना, किसी कीमत से नहीं उतारन देना। स्वतंत्रता, हर एक की अपनी स्वतंत्रता। ते जिसने भारत वासियों को स्वतंत्रता लैके दी, मैनू हैरानगी है अज उसकी उम्मत नूं ये पतंत्र रखना चाहते हैं, उहदी उम्मत नूं दबा के रखना चाहते हैं, उहदी उम्मत नूं गुलाम बना के रखना चाहते हैं। भारत दे सिर्फ असी मान कर सकते हाँ, साडे कोल ऋषि मुनियां दा रूप है, साडे कोल ऋषि मुनियां दी संस्कृति है। राम धनुषधारी ने सुदर्शन चक्कर हाथ ते रखदा श्री कृष्ण, त्रिशूल है महादेव दे कोल, परशुराम रखदा बरछा,
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਿਆਈ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਪੀੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ तमाम ਅਵਤਾਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਬਸਤਰ ਨਾ ਕੇਸ, ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ। ਨਹੀਂ, ਮਾਡਰਨ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਾਡਰਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਲੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਦਲੋ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਦਲੋ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਹੋਈ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਨਹਿਚਲ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं इन्नी अर्ज कर दिया, एक वो हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ, एक वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ? ਤੇ ਜਦ ਖੁਦ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, एक महान खजाना 10 गुरु साहिबान ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के रूप में साडे सामने रखिया। सदियां तो असी पूजा जरूर कर रहे हैं, इस नूं खोल के नहीं वेख्या। प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निदाना। उसे दिन असी माला माल होवांगे जिस दिन इस खजाने नूं खोलांगे। ते यह खजाना जब साडे अंदर बाणी दे रूप च वसेगा, ये बाणी दे रूप च बाहर प्रगट होवेगा। इन्नी मैं अर्ज करदे हां। लाजमी सिखी दा अंदरी स्वरूप है बाणी दा रस माणना, ते सिखी दा बाहर दा रूप है ऋषि मुनियां दा रूप हो जाना, साधु संतां दी शक्ल हो जानी। और इस तरह का साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महान परोपकार समुचे जगत ते कीता। और महान गुरुदेव अज दे दिन दरबार साहब दे प्रकाशमान होए और अपनी बाणी दे राही चारों पासे अज भी किरना खलेर रहे ने। ते जिवें अंधे बंदे नूं सूरज तो चानना नहीं मिलता, ते जिवें कोई अखां बंद कर लवे ओहदा सूरज नाल संबंध नहीं जुड़दा, इसे तरीके नाल खिमा करनी हंकारी रसिया जगत दे फसिया होया मनुख गुरु ग्रंथ साहब दे कोलों बैठ के भी इस अगम्मी किरना तो वांझा रह जाएगा, शब्द दे प्रकाश तो वांझा रह जाएगा। हुण अखां बंद करके सूरज दे कोलों ना बैठो, अखां खोल के बैठो ताकि ये शब्द थोड़े अंदर वसे, ते शब्द दा रस जो अंदर वसे ते बाणे दे रूप विच बाहर प्रगट होवे। सतगुरु इस रंग दियां रहमतां करन। इन्ने ही बचन प्रवान करने समा हो गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सारियां ते दया वरतान, सारियां दे उत्ते अपनी मेहर भरे कला वरतान, ताकि कन्ना दे राही शब्द दा अंदर वासा होवे, बाणी दा अंदर वासा होवे, ते बाणे दे राही ये बाणी तन दे राही बाहर प्रगट होवे, ते 10 गुरु साहिबान मान नाल कह सकन ये हुण अपना ही रूप हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ कोई फर्क नहीं। ਤੇ फिर मैं अर्ज करदे हां, जद भी ਤੁਹਾਡੇ नाल जगत दे 'ਚ कोई चर्चा करे, कहना बाइबल ईसा दी लिखी हुई नहीं है, रामायण राम दी लिखी हुई कोई नहीं, गीता कृष्ण दी लिखी हुई नहीं है, वेद ब्रह्मे दे लिखे हुए नहीं है, कुरान मुहम्मद साहब की लिखी हुई नहीं है। ये जदों उचारण होइयां ते जदों लिखियां गईयां, किधरे हज़ारां साल का वक्फ है, किधरे सैकड़े साल का वक्फ है, उन्हां दा हू बहु ओही रूप नहीं है, खो गया। सिर्फ इको एक ग्रंथ है जगत दा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिसका सही रूप है, हू बहु ओही रूप है, और जिहदे च एक शब्द ना घटाया गया ना वधाया गया। ये मान इस कौम दे कोल है। ज्ञान दासागर ज्ञान